Good evening, and today we are going to read GST impact on Indian fiscal deficits. Anjali madam, over to you. You can start the reading. Thank you. Yes, thank you, HR sir. So we proceed with chapter 9 and we proceed with this topic, GST impact on Indian fiscal deficit. Fiscal deficit means the difference between government's total revenue and total expenditure in a financial year. Following measures are taken by the government to reduce the fiscal deficit and increase revenue. Government revenue started increasing by the use of data intrinsic tools and other techniques to trace the suspicious transactions. Aadhaar and PAN link with bank account. Collecting information from sub-registrar for purchase or sale of immovable property having agreement value more than 30 lakhs. Collecting information from bank about cash deposits of more than 10 lakh rupees in savings bank account. Using NASA satellite to check the reality of agricultural income shown in books of accounts. Mandatory declaration of foreign account and assets. 100% penalty for both purchaser and seller giving bogus bills. E-passbook for all immovable properties. Government may implement this system in future. Using social media to track luxury cars, foreign trips, etc. TCS of 1% on car purchase with worth more than 10 lakh rupees value. TDS of 1% if you purchase gold more than 2 lakh rupees. Cash receipt limit not more than 2 lakh rupees from a single customer. One bank account number for all bank accounts. It helps to trace the multiple bank account held which is not disclosed in the books. Applicability of TDS on cash withdrawal from bank. As per new amendment, all financial transactions will be reflected in 26 AS. Next page. GST effects on Indian household sector. Food items are showing positive effect as the tax rate reduced from 6% to 5%. That is, packaged tea, coffee, edible oil, and packed paneer are 1% cheaper. After implementation of GST, approximately 320 rupees per month is saved by an average Indian household. If you are spending 8,400 per month, this is shown in the table. Before GST, tax amount is 830 rupees. After GST, it is 510 rupees. So savings after GST per month is 320 rupees. So GST effect on health services. Indian healthcare industry is now amongst the major sectors with respect to revenue and employment. Taxable services. Income from renting of premises from canteen, pharmacy, sale of scrap or disposal of assets or machinery, placing fees or lodging, boarding of attendants with OPD. Exempted services. All healthcare services by a clinical establishment or authorized medical practitioner by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy are currently exempt from GST. Services by a veterinary clinic in relation to health care of animals or birds. Blood bank by way of preservation of stem cells or any other service in relation to such preservation. Transportation of patients in ambulance. Medical run by hospital. Food provided to hospital. Composite services. If doctor is giving some medicines along with his core services, then it is not taxable because as per composite services, main service GST will be applicable and main service GST is nil. Hence, composite service GST is also nil. Impact of GST on manufacturers. Manufacturing sector of any country can rightly be deemed as the backbone of its economy. Leveraging its resources for maximum economic boost,
which then makes way for competitive trade and business to take place. The goods and service tax on manufacturing sector has offered various savings, which are elaborated as follows. Reduced cost of production, as under GST, tax is levied on a single taxable event. Simplification of taxes levied through removal of differential valuations, as GST pushes for transaction-based valuations only. Subsumed taxes mean less costs and better quality of goods and services. Restructured and streamlined supply chain leading to improved business efficiency. Only registration as per the state to apply henceforth. Small manufacturing businesses can now opt for composition scheme. That is, manufacturing businesses with turnover as prescribed in the GST Act are now eligible for availing the composition scheme and providing some measure of tax relief to the intended beneficiaries. Next page. Records a manufacturing unit must maintain for self-analysis. Manufacturing concern is required to keep the records of issue of materials, entry book of input receipts, entry book of capital goods received, record of input sent for job work outside the factory, record of inputs received in the factory from the job work. Estimated cost sheet should be prepared to set a budget and estimated cost of a product in advance. With this concluding thought, we are over with this chapter. Taxation laws seem complicated to a layman. There are two types of taxation, direct and indirect. Direct tax is directly levied on the income earned. Indirect tax is levied on products and is collected from the end user of the product. Some businessmen use this tax amount in their business instead of paying it to the government. This is not advisable. With this, we end chapter 9. Over to you, HR sir. Thank you, madam. Today we are going to read very important chapter, GST impact on Indian fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट जीएसटी का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, जीएसटी आने से आपका फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का उसे क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम लोग स्टडी करेंगे. फिस्कल डेफिसिट मींस द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर इन अ फाइनेंशियल ईयर. जैसे अपना बिजनेस का सेल परचेज जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता है. टोटल रेवेन्यू मींस इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशंस व्हाट एवर गवर्नमेंट कलेक्टेड द रेवेन्यू and whatever total expenditures in the financial year, जो भी उसका deficit surplus रहेगा, that is called a fiscal deficit or surplus. गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाया. जैसे हम लोग अपना बिजनेस में कैसे अपना सेल्स बढ़ाना है, जैसे गवर्नमेंट का भी टारगेट होता है कि अपना कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ाए. उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए चालू किया. दे आर यूजिंग डाटा इंट्रिंसिक टूल्स. बहुत सारे जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होता है, बहुत सारे अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस, वो सब चीजें यूजिंग द टेक्नोलॉजी और शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिपोर्ट्स. इसके लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाएगा. क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट्स ले रहे हैं, हम लोग एक एक डिस्कशंस करेंगे. आधार एंड पैन लिंक विद द बैंक अकाउंट्स. जैसे अभी आपका आधार और पैन दोनों लिंक हो जाएगा. जैसे वो बैंक अकाउंट को लिंक हो गया तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सब रजिस्टर. सपोज आपका कुछ असेट्स आपने परचेज किया, सेल किया, तो सब रजिस्टर से डायरेक्टली आपका इंफॉर्मेशन पहले 26 AS में दिखता था, अभी रिसेंटली दे आर स्टार्टेड AIS मींस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका सब ट्रांजैक्शन दिखेगा. आपका जो भी LIC है, म्यूचुअल फंड से आपने असेट परचेज किया, सेल किया, सब चीजें आपका भी AIS में दिखेगा. आपका सेविंग इंटरेस्ट, इवन बैंक का सेविंग इंटरेस्ट
जो भी बहुत सारे लोगों का सेविंग इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं होता था पहले, अभी सब आपका एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको उसमें डिस्क्लोज हो जाएगा। और कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, जैसे बैंक से जो भी आपका बैंक में ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट हुआ मोर देन 10 लाख, वो भी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को मिलेगा। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर इनकम बताते, तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस रहते। सपोज आपका कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, आपने सेल कर दिया, तो आपका कैपिटल गेन लगेगा क्या नहीं लगेगा, बहुत सारे दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बट अभी नासा सैटेलाइट से हिसाब से वो चेक करते वेदर इट इज एग्रीकल्चर लैंड और नॉट। मींस आपका जो भी एग्रीकल्चर लैंड का जो कंडीशंस है आप वो फुलफिल हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, वो नासा सैटेलाइट से गवर्नमेंट अभी चेक करेंगे। मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेन अकाउंट्स एंड असेट्स, पहले मैंडेटरी नहीं था फॉरेन अकाउंट का अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम पे। सपोज आपका कुछ फॉरेन अकाउंट से, मींस आपका अकाउंट्स बाहर भी आपका ओपन किया हुआ है, फॉरेन में आपका असेट्स है, वो डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी हो गया। 100% पेनल्टी फॉर बोथ परचेजर एंड सेलर गिविंग बोगस बिल्स, पहले कैसे बोगस बिल जो लेता है उनके लिए पेनल्टी फाइन्स बैठता था, बट अभी दोनों के लिए 100% पेनल्टी फॉर परचेजर एज वेल एज सेलर फॉर गिविंग द बोगस बिल्स। ये बहुत सारी ध्यान में रखना है, दोनों लोगों के लिए अभी 100% पेनल्टी बैठने वाला है। ई पासबुक फॉर ऑल इमोबल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट दिस सिस्टम इन फ्यूचर्स। ई पासबुक क्या होता है, जैसे आपका इमोबल प्रॉपर्टीज है, आपने बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीदी करके रखा है, बट आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, वो भी सपोज इन फ्यूचर में गवर्नमेंट वो भी ई पासबुक लाने का चांसेस है। वो सब आपका जो इमोबल प्रॉपर्टी है वो ई पासबुक में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार वो रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सोर्सेस ऑफ इनकम, आपका जो भी इमोबल प्रॉपर्टी है उसका सोर्सेस ऑफ इनकम वो किधर से आ गया, आप कैसे परचेज किया, ये सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास मिलेगा। यूजिंग सोशल मीडिया टू ट्रैक लग्जरी कार्स एंड फॉरेन ट्रिप्स, जैसे अभी आप फॉरेन ट्रिप जाने के बाद आप फेसबुक में आपका फोटो डाल देंगे, और आप कार लेने के बाद जैसे आपने जॉगर गाड़ी लिया, मर्सिडीज लिया, BMW गाड़ी लिया, अपने सोशल मीडिया में आप पोस्ट करते। गवर्नमेंट यूजिंग दिस इज द वन ऑफ द टूल्स टू फाइंड आउट द ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपका क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप क्या क्या एक्सपेंडिचर्स होता है, सब चीजें वो सोशल मीडिया से भी आजकल चेक हो सकते हैं। TCS ऑन 1% ऑन परचेज ऑफ कार मोर देन 10 लाख रुपीज, अभी बहुत सारे लोग कार परचेज करता है, सपोज दे आर परचेजिंग 50 लाख कार्स, बट उसका सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, वेदर दे आर टेकन अ लोन और दे आर टेकन फ्रॉम ओन सोर्सेस, ये भी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाता है। वो इन द फॉर्म ऑफ TCS दे आर डिडक्टिंग 1% TCS इफ परचेज वैल्यू इज मोर देन 10 लाख रुपीज। सपोज आपका कार का वैल्यू मोर देन 10 लाख है, द डीलर डिडक्टिंग द TCS ऑफ 1%, वो आपका 26A में भी दिखेगा, गवर्नमेंट को भी दिखेगा आपने कौन सा कार लिया हुआ। अभी हम बहुत सारे क्लाइंट्स को अभी विश करते, सर कंग्रेचुलेशन आपने कार लिया इतना अमाउंट का, सो दे आर सरप्राइजिंग हाउ सर आपको तो हम लोग डिटेल दिया नहीं, ये कैसे पता होगा। तो ये सब चीजें अभी आपका 26A में दिखने को चालू हो गया, आपने कार कितना को लिया तो TCS के माध्यम से अपने को दिख के आ जाते हैं। TDS ऑफ 1% इफ यू परचेज गोल्ड मोर देन 2 लाख रुपीज, सपोज आप गोल्ड मोर देन 2 लाख से एक ही जगह पे आपने परचेज किया, आपका पैन बेस के ऊपर आपका 2 लाख से ज्यादा परचेज हुआ तो आपको TDS उधर कट हो जाते हैं। कैश रिसिप्ट लिमिट नॉट मोर देन 2 लाख फ्रॉम ए सिंगल कस्टमर, पहले कैश आप कस्टमर से कितना भी ले सकता था, अभी उसके लिए भी एक कैप आ गए, साल भर में आप एक कस्टमर से 2 लाख से ज्यादा आप कैश नहीं ले सकते, वो आपका चाहे रेगुलर ट्रांजेक्शन हो या आपका कुछ कैपिटल असेट्स आपने सेल किया है, तो भी आपको मैक्सिमम आप कैश ले सकते हैं 2 लाख रुपीज। दूसरा मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या हुआ ले रहा है कि 1 बैंक अकाउंट नंबर ऑफ फॉर ऑल बैंक अकाउंट, सभी सपोज बहुत सारे बैंक अभी मर्ज हो रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए इतना इजी हो गया, इन फ्यूचर में जैसे आपका पैन नंबर है ऐसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो जाएगा, मींस आप कौन सा भी बैंक में आप अकाउंट ओपन किया तो एक ही अकाउंट नंबर होगा। इससे क्या होगा गवर्नमेंट को इजी, दे आर ट्रैक ऑल योर ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑल योर बैंक विद 1 बैंक अकाउंट, मींस 1 बैंक अकाउंट फॉर ऑल बैंक, यानी बैंक आप कौन सा भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कर दीजिए तो आपका बैंक अकाउंट नंबर एक ही रहेगा, जैसे आपका पैन नंबर है ऐसे आपका बैंक अकाउंट नंबर भी एक ही हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसे इजीली दे कैन ट्रेस द ट्रांजैक्शंस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द TDS ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सपोज अभी आप कैश विड्रॉल कर रहे बैंक से तो TDS का भी अभी प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। सपोज आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आप 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल किया तो आपको TDS कट होगा। सपोज आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा 1 करोड़ के ऊपर आपका TDS कट करेंगे, उसके लिए ध्यान में रखिए जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे तो आपका TDS उसमें कट हो जाएगा। As per new amendment, all financial transaction will be reflecting in 26AS. 26AS में आपका सब ट्रांजेक्शंस दिखता था, now they are amended that 26AS into annual information system, उसमें सब रिपोर्टिंग आपका
अभी दिख जाएगा। ये भी रिसेंटली नवंबर से ही चालू हुआ। हर एक लोग जाके लॉग इन कर दीजिए, आपका एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम देख लीजिए, उसके हिसाब से आपका सीए को डिटेल दे दीजिए, रिटर्न भर दीजिए, नहीं तो आपको नोटिस आ जाएगा। यू टेक केयर ऑफ एवरीवन, यू गो लॉग इन एंड चेक द योर एआईएस, उसमें सब डिटेल्स आपका जो भी एफडी इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट है, वो सब उसमें आ जाता है। जीएसटी इफेक्ट्स ऑन इंडियन हाउस होल्ड सेक्टर। अभी जीएसटी आने के बाद अपना हाउस होल्ड सेक्टर में क्या फर्क पड़ा, इससे अपना क्या सेविंग हुआ, क्या अपना बचत हुआ टैक्सेशन के माध्यम से। फूड आइटम्स आर शोइंग पॉजिटिव इफेक्ट्स एज द टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 6% टू 5%। पहले फूड के ऊपर 6% टैक्स था, अभी वो 5% हो गया। उसके लिए 1% अपना फूड प्रोडक्ट चीपर हो गया आफ्टर द जीएसटी। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी we are saving rupees 320 per month is saved by an average Indian household. If you are spending rupees 8,400 per month, आप 320 rupees आपका टैक्स के रूप में सेव हो रहा है। इसका एग्जांपल्स दिया हुआ है, दिस इज द ओनली एग्जांपल्स। आपका सपोज आपने 8,400 आपका घर के लिए खर्चे किया, तो पहले जीएसटी आप 830 रुपीज आप पे, बिफोर जीएसटी आपका टैक्स 830 था, अभी आफ्टर जीएसटी your tax will be 500 times. It means आपने 320 rupees per month आप सेव कर रहे हैं if you are spending rupees 8,400 for your household expenses. जीएसटी आने से बहुत सारे फायदा हुआ इस सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में। हम लोग बोल सकते कि उसमें टैक्स का कम हुआ, उसके लिए आपका ये फायदा हो गया। जीएसटी इफेक्ट ऑन द हेल्थ सर्विसेज। अभी हेल्थ सर्विसेज से क्या क्या जीएसटी का हेल्थ सर्विस में क्या क्या इफेक्ट हुआ। Indian healthcare industry is now amongst the major sector with respect to revenue and employment. जो हेल्थ सेक्टर है ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि रेवेन्यू एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट पर्पस। उसके लिए जीएसटी आने के बाद उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हुआ हम लोग इसमें देख लेंगे। टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज है तो भी वो टैक्सेबल है। कौन सा सर्विसेज टैक्सेबल है हम लोग देखेंगे। इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस फ्रॉम कैंटीन, सपोज आप कैंटीन रेंट में दिया हुआ है, फार्मेसी, सेल ऑफ स्क्रैप, disposal of assets, machinery, blessing fees, lodging, boarding of attending with the OPD, ये जो भी इनकम है ये सब टैक्सेबल है। एग्जम्प्टेड सर्विसेज कौन सा है हेल्थ सर्विसेज में, जैसे प्रीवियसली सर्विस टैक्स में भी बहुत सारे सर्विसेज जो भी एग्जेम्प्ट था हेल्थ सर्विसेज, वो सेम सर्विसेज अभी अपना जीएसटी में भी एग्जेम्पशंस अपने को दिखेगा। ऑल हेल्थ सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, medical practitioner by way of diagnosis, treatment of care for illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy or currently are exempt from the GST. ये सब जो भी डॉक्टर ने सर्विस दे रहे उसके ऊपर जीएसटी भरने का जरूरत नहीं है। सर्विसेज by a veterinary clinic in relation to health care of the animals or birds, जो भी वेटरनरी क्लिनिक्स है उसको उनको भी जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है। Blood bank by way of preservation of stem cells or any other services in relation to preservation. Blood is very important. Now we are understand in COVID the importance of the blood. So blood related जो भी सर्विसेज है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं रखा हुआ है। दिस इज वेरी गुड थिंग। हेल्थ के ऊपर बहुत सारे सबके लिए चीफ में कम रेट में सब मिलना चाहिए। दैट इज द वन ऑफ द रीजंस दे आर नॉट चार्जिंग द जीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए जीएसटी नहीं है। मेडिकल रन बाय हॉस्पिटल, फूड प्रोवाइड टू हॉस्पिटल, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। Composite services, if doctor are giving medicines along with the core services, then there is not taxable, because as per the composite services, main services GST will be applicable, and main services if it is nil, then composite service GST is also nil. Means if doctor अपना डॉक्टर उसके सर्विसेज के साथ में उन्होंने सपोज मेडिसिन भी आपको दे रहे, तो वो मेडिसिन जो दे रहे दैट इज द कंपोजिट सर्विसेज में वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जो मेन सर्विस है डॉक्टर सर्विस दैट इज एग्जेम्प्टेड। सो व्हाटएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड अलोंग विद द डॉक्टर सर्विसेज दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या जीएसटी के जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चर सेक्टर में क्या क्या इफेक्ट्स हुआ हम लोग देख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ एनी कंट्री आर कैन राइटली डीम्ड एज द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दे आर कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज टू द ओवर इंडियन जीडीपी एंड ऑल ओवर कंट्री जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी बैकबोन फॉर द इंडियन एंड एनी अदर कंट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ जीएसटी आने के बाद हम लोग देख लेंगे। Reduce the cost of production as under GST Act levied on a single taxable event। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हो गया, क्योंकि पहले टैक्सेशन के ऊपर टैक्सेशन पड़ता था, उसके लिए मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता था। जैसे जीएसटी आ गया देयर इज ओनली सिंगल टैक्सेबल इवेंट, सो मटेरियल कॉस्ट कम हो गया, सो प्रोडक्शन
कॉस्ट भी कम हो गया और मटेरियल अपना फिनिश प्रोडक्ट भी कम रेट में सबको मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन लेविड थ्रू रिमूवल ऑफ डिफरेंशियल वैल्यूएशंस, जैसे पहले एक्साइज में और सर्विस टैक्स में वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था, जैसे जीएसटी आ गया ओनली ट्रांजैक्शन बेस्ड वैल्यूएशन से, उसके लिए वो भी अपना हेडेक कम हो गया। बहुत सारे टैक्सेशन मर्ज हुआ, मोर देन 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो मर्ज होके कॉस्ट जो है वो कम हो गया, उसके लिए जीएसटी आने के बाद मटेरियल का भी कॉस्ट कम हो गया, तो फिनिश प्रोडक्ट भी कॉस्ट रेट कम हो गया। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रिस्ट्रक्चर एंड स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन रिलेटिंग टू इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी, जैसे जीएसटी आ गया उसका सप्लाई चेन का भी साइकिल बढ़ गया, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया में आप किधर भी मटेरियल परचेज किया तो सेम रेट हो गया। पहले कैसे हर एक स्टेट में अलग अलग रेट्स होता था, अलग अलग वैट रेट अलग अलग ये होता था, उसके लिए रेट जो है हर एक स्टेट में अलग अलग आपको मिलता था। जैसे जीएसटी आ गया, देयर इज अ वन टैक्स वन नेशन, सो दैट यू आर गेटिंग एनी मटेरियल ऑल ओवर इंडिया में सेम आपको मिलता है। इसके दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओनली रजिस्ट्रेशन एज पर द स्टेट अप्लाई हैंसफोर्थ, आपको जैसे स्टेट में आपका कुछ ब्रांच ओपन करना है, कुछ नया कंपनी डालना है तो स्टेट वाइज आपको नंबर लेना पड़ेगा। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैन आल्सो ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन स्कीम है जीएसटी देयर आर नॉर्मल आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और कंपोजिशन में भी ले सकते हैं। कंपोजिशन मींस आपको जीएसटी का आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा, मींस इनपुट टैक्स आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप ओनली पे 1% टू द गवर्नमेंट। ये बहुत सारे स्मॉल कंपनी के लिए बेनिफिट है। सपोज आपका टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ से तो आप कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारे लोगों को ये फायदामंद नहीं हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लोगों का जो भी कस्टमर रहेगा वो कंपलसरी B2B होता है, उसके लिए उनको कंपोजिशन स्कीम इतना उनको फायदामंद नहीं होगा। बट ये बाकी ट्रेडर लोगों के लिए बाकी उनके लिए फायदा हो गया, बट मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए ये ज्यादा तरफ से कंपोजिशन स्कीम फायदा नहीं हुआ है। Record of manufacturing units must maintain for self analysis. Manufacturing company is required to keep the records. Manufacturing company ये records आपको कंपलसरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है? इशू ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल कुछ इशू किया उसके लिए भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। एंट्री बुक, इनपुट रिसिपेंट्स, इनपुट के बारे में भी आपको एंट्री करना है। एंट्री बुक ऑफ कैपिटल गुड्स रिसीव्ड, आपका जो भी कैपिटल गुड्स आपने सपोज मशीनरी परचेज किया, बाकी कुछ फिक्स एसेट आपने परचेज किया, उसका भी रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड ऑफ इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क आउटसाइड द फैक्ट्री, आपने सपोज मटेरियल आप बाहर जॉब वर्क के लिए भेज रहे, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले अभी ITC 04 हम लोग जीएसटी पोर्टल में सबमिट करता था, अभी वो भी एग्जाम कर दिया जीएसटी डिपार्टमेंट में। दैट इज वेरी गुड थिंग because that maintaining ITC 04 and uploading it's very tedious task. So considering the manufacturing and other association request, they remove the uploading ITC 04. That is very good stand taken by the GST department. Record of input received in the factory from the job work, जैसे अपना मटेरियल जॉब वर्क के लिए गया उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना है, वापस आया उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना बहुत जरूरी है। Estimated cost should be prepared to set budget and estimated cost of productions in advance. जैसे आपका बिजनेस का कुछ ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको एस्टिमेशन का कॉस्ट शीट बना के आपका कितना कॉस्ट बनेगा, आप उसकी कितना आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सब चीजें देखने के लिए आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना बहुत जरूरी है। The fourth of the chapters, taxation laws seem complicated to layman. Taxation लेमन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, इधर बहुत सारे प्रोविजंस है, क्लॉज है, सब क्लॉज है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है। There are many things we have to understand about the taxation. ये लेमन के लिए अंडरस्टैंड करना very difficult because in GST there are many changes happening every day, so it is very difficult to understand the GST Act. So we have to update ourselves in all notifications and circulars. There are two type of taxations. There are उधर दो टाइप का टैक्सेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस एंड अनदर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इज डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम अर्न। जो डायरेक्ट टैक्स होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सैलरी होल्डर लोग हैं, उनका डायरेक्टली सैलरी इनकम के ऊपर टीडीएस कट होता है। दैट इज द डायरेक्ट टैक्स, मींस डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने टीडीएस भी प्रोविजन सबके लिए एप्लीकेशन किया, अभी बहुत सारे इवन गुड्स के ऊपर भी टीडीएस प्रोविजन आ गया। This is also one type of advance tax collected by the government in the form of direct taxes. ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेविड ऑन द प्रोडक्ट्स एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अपने को न समझते हुए हम लोग सब लोग पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप जाके कुछ मटेरियल ले लिया मार्केट से, सपोज आपने सोप लिया तो आप ऑलरेडी यू आर पेइंग द सम टैक्सेशन इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ये जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं, जो भी एंड यूजर है वो बियर करता है इसमें। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग जीएसटी कलेक्ट करके इन टाइम पे नहीं भरते, इट मींस आपने गवर्नमेंट का जो पैसे कलेक्ट किया वो भी आप बिजनेस में लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए एडवाइजेबल थिंग्स, बिकॉज इफ यू आर कलेक्टिंग द जीएसटी इट इज द योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, so you should not use your GST in your business, so you pay GST in time, and आपने जैसे GST इन टाइम पे करेंगे आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, आपका जो भी सप्लायर कस्टमर जो भी रहेगा आपका परफेक्ट आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि अभी सपोज आपने जीएसटी पे टाइम ने नहीं किया तो सब अभी ऑनलाइन दिखता है, या आपका जो जीएसटी अभी सिविल रिपोर्ट जैसे आपका काम कर रहे हैं आपका बिजनेस ग्रोथ के लिए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम पे जीएसटी पे करना बहुत जरूरी है। Thank you very much for today's sessions. Thank you, Anjali madam. And for next week, we'll read chapter 10, Real Estate Regulatory Authority. So thank you very much for today's sessions. Thank you, sir. Thank you. Thank you.